Honorable आपको Speaker, बोलने का मौका दूंगा बजट के बाद, माननीय वित्त मंत्री जी। Honorable Speaker, I present the budget for the year 2021-2022. As introduction, Honorable Speaker, the preparation of this budget was undertaken in circumstances like never before. We knew of calamities that have affected a country or a region within a country. But what we have endured with COVID-19 through 2020 is sui generis. When I presented the budget 2020-2021, we could not have imagined that the global economy, already in throes of a slowdown, would be pushed into an unprecedented contraction. We could not have also imagined then that our people, as those in other countries, would have to endure the loss of near and dear ones and suffer hardships brought about due to a health crisis. The risk of not having a lockdown was far too high. Within 48 hours of declaring a 3-week-long complete lockdown, the Prime Minister announced the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, valued at 2.76 lakh crores, that provided free food grain to 800 million people, free cooking gas for 80 million families for months, and cash directly to over 400 million farmers, women, elderly, the poor, and the needy. Even as a large section of citizens stayed home, milk, vegetables, fruit suppliers, health and sanitary workers, truck drivers, railways and public transport workers, bank employees, electricity workers, annadatas, police, firemen and the armed forces all had to go about their work as normal, but with the additional anxiety of the virus hanging over them. We recognize this, and I think I speak on behalf of everybody in this august House when I express my heartfelt gratitude to these men and women for how they were able to carry out their work and duty to provide for the nation's basics over those crucial months. Speaker, sir, for public good, honourable members of Parliament and members of legislative assemblies too offered their salaries. In May 2020, the government announced the Atmanirbhar Bharat package. To sustain the recovery further into the year, we also rolled out 2 more Atmanirbhar packages, 2 and 3. Total financial impact of all the Atmanirbhar Bharat packages, including measures taken by the RBI, was estimated to be about 27.1 lakh crores, which amounts to more than 13% of our GDP. As a government, we kept a watch on the situation and were proactive in our responses. The government, led by the Prime Minister, stretched its resources to deliver for most vulnerable sections of our society, the poorest of the poor, the Dalits, the tribals, the elderly, the migrant workers and our children. The Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, the 3 Atmanirbhar packages and announcements made later were like 5 mini budgets in themselves. The Atmanirbhar packages accelerated our pace of structural reforms, redefinition of MSMEs, commercialization of the mining sector, agriculture and labour reforms, privatization of public sector undertakings, One Nation, One Ration Card, production-linked incentive schemes are some of the notable reforms carried out during this period. Faceless income tax assessment, DBT, and financial inclusion are the others. Today, India has 2 vaccines available and has begun medically safeguarding not only her own citizens against COVID-19, but also those of 100 or more countries. It is added comfort to know that 2 or more vaccines are also expected soon. Honourable Prime Minister launched the vaccination drive
by crediting and thanking our scientists. We are ever grateful for the strength and rigor of their efforts. Having said that, we are all reminded time and again that our fight against COVID-19 continues into 2021. Now, just as it happened after the 2 world wars, there are signs that the political, economic, and strategic relations in the post-COVID world are changing. This moment in history is the dawn of a new era, one in which India is well poised to truly be the land of promise and hope. I borrow the words of Rabindranath Tagore. Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark. Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark. In this spirit, I can't help but recall the joy that we as cricket-loving nation felt after the Team India's recent spectacular success in Australia. It has reminded us of all the qualities that we as a people, particularly our youth, epitomize of having abundant promise and the unsuppressed thirst to perform and to succeed. Today, data shows that India now has one of the lowest death rate of 112 per million population and one of the lowest active cases of about 130 per million. This has laid the foundation to the revival we are seeing now in the economy. This budget will be the first of this new decade. This budget will also be a digital budget, and that has happened with all. अभी तक सिर्फ 3 बार बजट इससे भी इसमें दिखाया गया कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो उसमें प्रभावित हुई है और ये भारत के अनुरूप है। ये जो हमारी अर्थव्यवस्था में जो खिंचाव हुआ है वो इसलिए क्योंकि इस समय विश्व के स्तर पर आपदा आ गई थी और जैसे कई दूसरे देशों ने इस आपदा को झेला है। ये कहते हुए मैं पूरी तरह से विश्वस्त हूँ कि सरकार पूरी तरह तैयार है और हम समर्थन करने के तैयार हैं और हम अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से मजबूती प्रदान करने के लिए प्रयासरत हैं। इससे हम चाहते हैं कि that it needs to और हम चाहते हैं कि समावेशिता के साथ वृद्धि हो। 2021 में कई महत्वपूर्ण हम कदम उठाएंगे। मैं उनमें से कुछ का जिक्र करूंगी। ये 75वां वर्ष है आज़ादी का, 60 वर्ष हो चुके हैं भारत में, 50 वर्ष भारत पाकिस्तान का जो युद्ध था उसको 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं और हमारी स्वतंत्रता का भी 70वां वर्ष है। ब्रिक्स प्रेसिडेंसी भी हमें मिलेगी और चंद्रयान 3 मिशन और हरिद्वार में महाकुंभ जैसे जो है महत्वपूर्ण कार्यक्रम होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बजट के बारे में बात करूं उससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि कैसे हमने दूरियां बनाते हुए हमने इन चुनौतियों का सामना किया। हमारे जैसे देश में लोग समय पर आगे आए हैं और इससे हमें कई तरीके से हमें आघात पहुंचा है। मैं सम्मान में हर नागरिक को सम्मान करती हूँ जिन्होंने ये जिस तरह की चुनौती का सामना किया है। राजकोषीय और मानसिक रूप से हम स्वस्थ रहें। पार्टिका में मैं आत्मनिर्भर भारत का एक परिकल्पना है जिसको मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आत्मनिर्भरता के ये नया विचार नहीं है। पुरातन भारत जो है आत्मनिर्भर रहा है और उसी तरीके से हमारे जो कारोबार का हम दूरी रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत एक व्याख्या है, 130 करोड़ लोगों की अभिव्यक्ति है जिनका पूरा विश्वास है जो हम अंतर्राष्ट्रीय दलों के हम हिस्सा हैं, G20 ब्रिक्स का हम हिस्सा हैं और हम चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था का विकास हो और अंतर्राष्ट्रीय जो सौर ऊर्जा है उसमें भी हम अपना योगदान दें।
भारत ने इसमें अथक प्रयास किए हैं। जो प्रस्ताव आए हैं वो उससे हमें मजबूती मिलेगी और हमारा जो संकल्प है वो और मजबूत होगा और किसानों की आय दुगनी होगी, अवसंरचना जो है मजबूत होगी और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, अच्छे और युवाओं को अच्छे अवसर मिलेंगे, शिक्षा सभी को मिल पाएगी, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और इसके साथ साथ विकास जो है वो समावेशिक होगा। इसके अतिरिक्त हम जो है 13 जो वायदे किए हैं उसको हम पूरा कर पाएंगे। बजट 2015-16 में जो वायदे किए थे हम उसको पूरा कर पाएंगे और उसको हम मूर्त रूप दे पाएंगे। अमृत महोत्सव 2022 का 75वां वर्ष होगा हमारी आजादी का 2022 में और उसमें आत्मनिर्भर भारत की गूंज को ही वो पूरा कर पाएंगे और 6 ये स्तंभ हैं, स्वास्थ्य और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना का विकास, समावेशिकता का विकास हो, भारत inclusive development for aspiration और मानवता जो संसाधन है उसको मजबूत करें और न्यूनतम अधिक कम लोगों के साथ शासन चला सकें। पहला जो स्तंभ है स्वास्थ्य और सबका कल्याण हो, यदि आरंभ में ही मैं ये कहना चाहूंगी कि जो स्वास्थ्य और अवसंरचना के क्षेत्र में निवेश किया गया बजट में उसमें काफी अधिक बढ़ोतरी की गई है और इसको आप देख पाएंगे संस्थान हमारा जो प्रतिबद्धताएं हैं हम समग्र रूप से इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे और हम 3 क्षेत्रों को मजबूती प्रदान करेंगे, क्यूरेटिव और हम चाहेंगे सबका कल्याण हो, सबकी तरफ ध्यान देंगे। जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उसमें केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं हैं, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, इसको शुरू किया जाएगा। इसमें 64,180 करोड़ रुपए का इसकी लागत से हम इस परिव्यय का आरंभ करेंगे। इसमें परिव्यय होगा और इससे हमारी क्षमता का विकास होगा, प्राथमिक और दूसरा जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो सुधरेंगी, उसको मजबूती मिलेगी और जो हमारे संस्थान हैं इस कार्य में लगे हुए नए संस्थान हैं वो भी इस पर ध्यान दे पाएंगे, वो नए और जो रोग हैं उभर रहे हैं उसकी तरफ वो ध्यान दे पाएंगे और इससे जो हमारा स्वास्थ्य मिशन है वो आगे बढ़ेगा। ये जो योजनाएं हैं 17,000 ग्रामीण और 11,000 शहरी क्षेत्रों में जो वेलनेस सेंटर हैं उस पर ध्यान दे पाएंगे और इसके लिए प्रयोगशालाएं शुरू की जाएंगी। 3,382 ब्लॉक यूनिट्स होंगी 11 राज्यों में और क्रिटिकल केयर अस्पताल होंगे ब्लॉक्स में 682 जिलों में और केंद्रीय संस्थान होंगे। इससे हमारे जो राष्ट्रीय केंद्र हैं वो होंगे 5 इसके क्षेत्रीय केंद्र होंगे और 20 इकाइयां होंगी। इससे एकीकृत जानकारी मिल पाएगी, इसके लिए पोर्टल होगा सभी राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में, ताकि हम सभी सार्वजनिक जो प्रयोगशालाएं हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनको जोड़ सकें। 17 नई पब्लिक हेल्थ यूनिट होंगी और इससे 33 जो मौजूदा पब्लिक हेल्थ यूनिट हैं उनको मजबूत कर पाएंगे, उनको सशक्त कर पाएंगे और 42 हवाई अड्डे होंगे, 11 सी पोर्ट्स होंगे और लैंड क्रॉसिंग होंगी और 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर होंगे और 2 मोबाइल हॉस्पिटल होंगे और 2 मोबाइल हॉस्पिटल, एक राष्ट्रीय संस्थान होंगे, केंद्रीय अनुसंधान प्लेटफॉर्म होंगे, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्र में 9 बायोसेफ्टी लेवल के 3 प्रयोगशालाएं होंगी और 4 क्षेत्रीय राष्ट्रीय स्तर के संस्थान होंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर न्यूट्रिशन पोषण के क्षेत्र में हम चाहते हैं कि हमारा जो पोषण है वो अच्छा हो और ये सभी को पौष्टिक भोजन मिले। इसके लिए हम सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल प्रोग्राम चलाएंगे, कार्यक्रम चलाएंगे, पोषण अभियान चलाएंगे और इसके लिए मिशन चलाएंगे।
the mission quotient 2.0. और इसमें जो हम रणनीति बनाएंगे, तो योजनाएं बनाएंगे ताकि इसका 112 एस्पिरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें ये इसको कार्यक्रम को चलाया जाएगा और पानी की आपूर्ति सभी जगह हो। WHO ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि स्वच्छ जल मिले, साफ सफाई हो, पर्यावरण साफ हो, और ये 3 आवश्यक जरूरतें हैं हमारी, ताकि हम सभी को जल जीवन मिशन उसकी शुरुआत की जाएगी। इसका उद्देश्य यह है कि सभी जल आपूर्ति हो सके। 4300 जो से अधिक जो हमारी लोकल बॉडी है वहाँ पर जल मिल सके, पानी मिल सके और सभी जगह पानी पहुँच सके, पानी का कनेक्शन दिया जा सके। और जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको भी आगे बढ़ाएंगे और इसको 5 सालों में इसको लागू किया जाएगा। और इसमें परिव्यय होगा 2,87,000 करोड़ का परिव्यय आएगा, इसमें खर्च आएगा। स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, इसको और अधिक स्वच्छता को बढ़ाने के लिए शहरी क्षेत्रों में हम चाहते हैं कि पूरी तरीके से स्वच्छ प्रबंधन के लिए प्रयास करें, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए प्रयास किए जाएं और कूड़े को अलग किया जा सके प्लास्टिक से, और जो हवा में पर्यावरण प्रदूषण होता है उसको कम किया जा सके, और जो निर्माण के क्षेत्र में जो प्रदूषण होता है उसको भी ठीक किया जा सके। और जो इसके लिए डंप साइट जो है स्वच्छ भारत मिशन में 2 इसको लागू किया जाएगा। इसके लिए कुल वित्तीय आवंटन होगा 1,47,678 करोड़ का 5 वर्ष के लिए। 2020-21 से ये कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। क्लीन जल, स्वच्छ वायु हो, क्योंकि पर्यावरण दूषित होता है, उसके लिए 2,217 करोड़ रुपए 43 शहरी क्षेत्रों के लिए रखे जाएंगे जो हमारी जनसंख्या है इस क्षेत्र में। और जो स्क्रैप की इसके लिए माननीय अध्यक्ष जी हम अलग से नीति का घोषणा करेंगे, जो स्क्रैपिंग नीति है, ताकि जो पुरानी जो हमारे कूड़ा कचरा है उसको, इससे जो ईंधन है वो ईंधन हमारा जो पर्यावरण के अनुरूप होगा, और कचरा जो है, और हम तेल का जो आयात करते हैं उसके खर्च में कमी आएगी। और इसके लिए फिटनेस टेस्ट होगा, व्हीकल का, वाहनों का फिटनेस टेस्ट होगा। 20 वर्ष के बाद अगर वाहन है और 15 वर्ष जो वाणिज्यिक वाहन है उनके 15 साल और बाकी दूसरे निजी वाहनों के लिए 20 साल। इसके लिए मंत्रालय कदम उठाएगा। वैक्सीन, नई कोकन वैक्सीन जिसका भारत में बनाया गया है, और जो 5 राज्यों में जो सारे देश में जिसका इस्तेमाल किया जाएगा। 50,000 बच्चों की जो मृत्यु हो जाती है उसको रोका जा सकेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने 35,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है कोविड-19 वैक्सीन के लिए इस वर्ष 2020-21 में। मैं यदि आवश्यकता होगी तो और भी निधियां उपलब्ध कराऊंगी। जहां तक बजट परिव्यय का संबंध है, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए यह 2,23,846 करोड़ रुपए रखा गया है, और इसके अनुसार यह 2021 में जैसा कि हमने देखा है कि जो भी था केवल 94,452 करोड़ का था, और यह वृद्धि होगी लगभग 127% की। और इसी की जो विवरण है वह अनुबंध 1 और 2 में दिए गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं दूसरी बात पर जाती हूँ जो कि वित्तीय परिव्यय और ढांचागत विकास के संबंध में है। आत्मनिर्भर भारत जो उत्पादन से संबंधित लिंक परियोजना है, इस संबंध में मैं आपके सामने बहुत ही दबाव देकर यह कहना चाहती हूँ, जहाँ तक 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का संबंध है और विनिर्माण क्षेत्र का संबंध है, इसके लिए विनिर्माण को दूसरे अंक पर बढ़ना होगा। जहाँ तक विनिर्माण कंपनियां हैं उन्हें बहुत ही अभिन्न अंग बनाना होगा विश्व स्तर पर आगे बढ़ने के लिए, और साथ ही साथ प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ाना होगा ताकि सभी प्रकार की
PIL योजनाएं हैं वहां पर विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए, और यह 13 क्षेत्रों में दिए गई है और भारत सरकार ने इसके लिए 1.97 करोड़ रुपए 5 वर्ष की अवधि के लिए दी गए हैं, जिसकी आरंभ इसी वर्ष से होगा। इसके साथ ही हमें स्वास्थ्य और हमारे जो मूलभूत क्षेत्र हैं उसमें हमें विश्व स्तर पर हम उभरेंगे और हमारे युवाओं को इससे रोजगार भी मिलेगा। जहां तक कपड़ा का संबंध है, टेक्सटाइल का संबंध है, मैं कहना चाहती हूँ कि विश्व स्तर पर हम चाहते हैं कि प्रतिस्पर्धा करें, इसके लिए बहुत ज्यादा निवेश की आवश्यकता है और इसके लिए एक योजना है मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क। यह शुरू किया जाएगा PIL योजना के अतिरिक्त और इसके माध्यम से विश्व स्तर का ढांचागत विकास किया जाएगा और इसमें ऐसी सुविधाएं दी जाएंगी जिससे कि विश्व स्तर के जो चैंपियन हैं वह निवेश में हम उनको बढ़ा सकें। 7 ऐसे पार्कों की स्थापना की जाएगी 3 वर्ष के भीतर। लेकिन जहां तक ढांचागत विकास का संबंध है, राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन जिसकी घोषणा मैंने दिसंबर 2019 में की थी, वह अपने आप में एक अलग प्रकार की योजना थी। पूरी जो सरकारी योजना है जो कि भारत सरकार द्वारा की गई है, NIP, इसकी 6,805 परियोजनाओं के साथ शुरू की गई थी। यह परियोजनाएं जो पाइपलाइन है यह 7,400 योजनाओं तक फैली है। लगभग 217 जो परियोजनाएं हैं जो कि 1.10 लाख करोड़ के हैं, कुछ मूलभूत परियोजनाओं के और मंत्रालय के तहत उनको पूरा कर दिया गया है। यह जो हम एक विशेष लक्ष्य लेकर चले हैं और यह सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि वह आगामी वर्षों में इसे पूरा करेगी और इसमें बहुत ज्यादा हमें निधियां चाहे सरकारी और वित्तीय क्षेत्र से मिलेंगे इस वर्ष के बजट में। मैं प्रस्ताव करती हूँ कि मैं कठोर कदम उठाऊंगी। यह 3 तरीके से काम किया जाएगा। पहला काम किया जाएगा कि मैं संस्थागत ढांचागत विकास करूंगी और मैं जो आस्तियां हैं उनका विमुद्रीकरण करूंगी और साथ ही साथ जो खर्च है वह केंद्रीय और राज्य बजट में उसको भी बढ़ाऊंगी। लेकिन जहां तक ढांचागत नियम है वह लंबी अवधि के जो इसमें वित्त है वह पेशेवर रूप से इनका प्रबंधन किया जाता है और इसमें संस्थागत चीजों का विकास करना होगा। इसे परंतु के रूप में लाकर हम एक ऐसा काम करेंगे जिससे हम बेहतर रूप से काम करें और इसके अनुसार मैं एक ऐसा विधेयक लेकर आऊंगी ताकि हम ऐसे संस्थानों को विकसित कर सके और इसके लिए मैंने 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं इस संस्थान के लिए। और हमारी महत्वाकांक्षा यह है कि हम एक ऐसी पोर्टफोलियो बनाएं जिसमें 5 लाख करोड़ इस BFI के लिए दिए जाएं और यह 3 वर्ष के भीतर दिया जाएगा। जहां तक चीजों का संबंध है जिसमें कि हम इसमें ध्यान देंगे कि किस प्रकार से हम इसमें आगे करें और इसमें यह सब काम करके हम यह काम करेंगे महोदय। इसके माध्यम से जो ऐसी जो चीजें हैं उनका विकास किया जाएगा और साथ ही साथ हम जो रियल एस्टेट क्षेत्र में है उसको भी हम काफी बढ़ा देंगे। लेकिन जहां तक आस्ती विमुद्रीकरण का संबंध है, इस संबंध में आपको कहना चाहती हूँ कि यह जो हम यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वित्त पोषण विकल्प है एक नई आस्तियों के लिए। मैं एक संभावित ब्राउनफील्ड अवसंरचना आस्तियों की एक राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन लॉन्च की जाएगी। एक आस्ति मुद्रीकरण डैशबोर्ड की प्रगति को ट्रैक करने के लिए और निवेशकों को देखने की सुविधा प्रदान करने के लिए सृजित किया जाएगा। मुद्रीकरण की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं। नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और PGCIL में से प्रत्येक ने एक INVIT प्रायोजित की है जो अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू संस्थागत निवेशकों को आकर्षित करेगी। 5,000 करोड़ रुपए के अनुमानित उद्यम मूल्य के साथ प्रचलित हो रही 5 सड़कें NHAI INVIT
को अंतरित की जाएगी। इसी तरह 7,000 करोड़ रुपए की ट्रांसमिशन आस्तियां PGCIL INVIT के लिए अंतरित की जाएंगी। रेलवे समर्पित भाड़ा कॉरिडोर आस्तियों को चालू होने के पश्चात प्रचालन और रखरखाव के लिए मुद्रीकृत करेगा। विमानपत्तनों का आगामी लॉट प्रचालनों और प्रबंधन रियायत के लिए मुद्रीकृत किया जाएगा। अन्य प्रमुख अवसंरचना आस्तियां जो मुद्रीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत रोल आउट की जाएंगी वे हैं NHII प्रचालनात्मक टोल रोड, PGCIL की ट्रांसमिशन आस्तियां, गेल IOCL तथा HPCL का तेल और गैस पाइपलाइनें, टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में AI विमानपत्तन, अन्य रेलवे अवसंरचना आस्तियां, केंद्रीय वेयर हाउसिंग निगम जैसे लोक उद्यम वेयर हाउसिंग आस्तियां तथा नेफेड इत्यादि और खेल स्टेडियम पूंजीगत बजट में तीव्र वृद्धि। बजट अनुमान 2020-21 में हमने पूंजीगत व्यय के लिए 4.12 लाख करोड़ रुपए प्रदान किए थे। हमारा यह प्रयास था कि संसाधनों की कमी के बावजूद हमें पूंजी पर अपेक्षाकृत अधिक व्यय करना चाहिए और हम वर्ष के अंत तक लगभग 4.39 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की उम्मीद रखते हैं। which I have provided in the RE of 2020-2021. 2021-22 के लिए मैं पूंजीगत वृद्धि में तीव्र वृद्धि का प्रस्ताव करती हूं और इस प्रकार 5.54 लाख करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं, जो 2021 के बजट अनुमान से 34.5% अधिक है। इसका मैंने परियोजनाओं, कार्यक्रमों, विभागों के लिए प्रदान किए जाने वाले आर्थिक कार्य विभाग के बजट शीट में 44,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि रखी है, जो पूंजीगत व्यय पर अधिक प्रगति दर्शाती है और अधिक निधियों की आवश्यकता है। इस व्यय के अतिरिक्त हम राज्यों और स्वायत्त निकायों को उनके पूंजीगत व्यय के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि भी प्रदान करेंगे। For their capital expenditure. हम अवसंरचना के सृजन पर अपने बजट में अधिक खर्च करने के लिए राज्यों को प्रेरित करने के लिए विशिष्ट तंत्र भी तैयार करेंगे। Creation of infrastructure. सड़क और राजमार्ग अवसंरचना। Roads and highways 3.3 लाख करोड़ रुपए की लागत से 13,000 किलोमीटर से अधिक लंबाई के सड़कों का भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 5.35 लाख करोड़ रुपए का ठेका पहले ही दे दिया गया है, जिसका 3,800 किलोमीटर भाग निर्मित हो गया है। वर्ष 2022 तक हम दूसरे 8,500 किलोमीटर का ठेका देंगे और राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के 11,000 किलोमीटर को पूर्ण करेंगे। किलोमीटर्स ऑफ नेशनल हाईवे कॉरिडोर। सड़क अवसंरचना को और बढ़ाने के लिए और अधिक आर्थिक कॉरिडोर की भी योजना बनाई जा रही है। कुछ इस प्रकार है। 1.03 लाख करोड़ रुपए के निवेश से तमिलनाडु राज्य में 3500 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण करेंगे। At an investment of 1.03 lakh crores. इनमें include मदुरई कोल्लम कॉरिडोर, चित्तूर कॉरिडोर शामिल हैं और निर्माण कार्य आगामी वर्ष से प्रारंभ होगा। will start next year. केरल में Second, मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर के 600 किलोमीटर सेक्शन सहित 65,000 करोड़ रुपए के निवेश से केरल राज्य में 1100 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य है, और इसमें including 600 किलोमीटर सेक्शन सिलीगुड़ी के उन्नयन सहित 25,000 किलोमीटर की लागत का राष्ट्रीय निर्माण कार्य भी इसमें शामिल है। और इसके साथ 675 किलोमीटर पश्चिम बंगाल, मैं कहती हूँ पश्चिम बंगाल at a cost of कोलकाता सिलीगुड़ी के उन्नयन सहित
25,000 करोड़ की लागत से पश्चिम बंगाल राज्य में 675 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण कार्य। रोड कोलकाता सिलीगुड़ी। नेशनल हाईवे असम राज्य में इस समय लगभग 19,000 करोड़ रुपए के राजमार्ग निर्माण कार्य आसाम में चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्गों के 1,300 किलोमीटर से अधिक को कवर करते हुए 34,000 करोड़ रुपए से अधिक के निर्माण कार्य आगामी 3 वर्षों में राज्य में निष्पादित किए जाएंगे। इन द कमिंग 3 years, कुछ फ्लैगशिप कॉरिडोर और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं जिनमें 2021-22 में पर्याप्त कार्यकलाप दिखाई देंगे, अनुबंध 2 में दी गई हैं मेरे भाषण के। मैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के 1,18,101 करोड़ रुपए का बढ़ा हुआ 1,18,101 करोड़ रुपए का बढ़ा हुआ परिव्यय प्रदान कर रही हूँ, जिसमें से पूंजी के लिए 1,08,230 करोड़ रुपए हैं, जो अब तक का सर्वाधिक है। Is for capital the highest ever provided. रेलवे अवसंरचना। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय रेलवे ने भारत के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार की है। इस योजना को 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे तंत्र सृजित करना है। रेलवे सिस्टम हमारे उद्योगों के लिए परिवहन लागत को कम करना, मेक इन इंडिया को समर्थ बनाने के लिए हमारी रणनीति का मुख्य बिंदु है। यह संभावना है कि पश्चिम समर्पित भारत कॉरिडोर और पूर्वी समर्पित कॉरिडोर जून 2022 तक चालू हो जाएगा। निम्नलिखित अतिरिक्त पहल प्रस्तावित हैं। 2021-22 में पूर्वी DFC का सोननगर गोमो खंड 263.7 किलोमीटर PPP मोड में शुरू किया जाएगा और यह इस पर शुरू किया जाएगा। 274.3 किलोमीटर का गोमो दानकुनी खंड भी इसके तत्काल बाद शुरू किया जाएगा। हम भावी समर्पित भावी परियोजना को निष्पादित करेंगे। नामतः खड़गपुर से विजयवाड़ा तक, पूर्वी तट कॉरिडोर भुसावल से खड़गपुर से दानकुनी तक, पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर और इटारसी से विजयवाड़ा तक, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर। प्रथम चरण में विकसित परियोजना निष्पादित की जाएंगी। विद्युतीकृत ब्रॉडगेज रूट किलोमीटर RKM 46,000 RKM अर्थात electrified is expected to reach 46,000 kilometers. 40,000 किलोमीटर, मतलब 1 अक्टूबर 2020 को 41,548 RKM से 2021 के अंत तक 72% विस्तार तक पहुंचने की संभावना है और ब्रॉडगेज रूटों का 100% विद्युतीकरण दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा। By December 2023. यात्रियों की सुविधा के लिए और सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय प्रस्तावित हैं। The following measures are being proposed. यात्रियों के लिए बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए पर्यटक रूटों पर सौंदर्यपरक रूप से डिजाइन किए गए विस्टा डोम LHV कोच आरंभ करेंगे। गत कुछ वर्षों में किए गए सुरक्षा उपायों के परिणाम प्राप्त हुए हैं। इस प्रयास को और सुदृढ़ करने के लिए भारतीय रेलवे के उच्च घनत्व नेटवर्क और उच्च उपयोग किए गए नेटवर्क रूटों को देसी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन संरक्षण प्रणाली प्रदान की जाएगी, जो मानवीय त्रुटि के कारण ट्रेन टकराने से समाप्त हो जाएगी। मैं रेलवे के लिए 1,10,000 और 55 करोड़ रुपए की एक रिकॉर्ड राशि प्रदान कर रही हूँ। इसमें से 1,60,100 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर ओनली। शहरी अवसंरचना। हम मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार और सिटी सेवा बस सेवा की वृद्धि के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन के हिस्से को बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं की वृद्धि के समर्थन के लिए 18,000 करोड़ रुपए की लागत पर एक नई योजना लॉन्च करेंगे। यह योजना 20
The scheme यह will योजना facilitate 20,000 से अधिक बसों के लिए वित्त deployment of अधिग्रहण innovative प्रचालन और PPP रखरखाव models के लिए to enable निजी क्षेत्र private के sector प्लेयरों को players सक्षम to बनाने finance, के लिए to नव acquire, to प्रवर्तनकारी operate and to maintain over मॉडलों की तैनाती 20,000 को सुकर buses. बनाएगी। यह योजना The scheme will ऑटोमोबाइल boost सेक्टर को the संवर्धित automobile करेगी, sector, आर्थिक समृद्धि में provide तेजी लाएगी, fillip to economic हमारे growth, युवाओं के लिए रोजगार अवसर create सृजित employment करेगी और opportunities शहरी for our निवासियों youth, के आवागमन and की सुविधा enhance को ease of बढ़ाएगी। mobility for urban कुल residents. 702 किलोमीटर A total of परंपरागत मेट्रो प्रचालन 702 में है kilometers of conventional और metro is operational 1016 and किलोमीटर another मेट्रो और 1,016 RRTS 27 kilometers शहरों of में metro निर्माणाधीन and है। RRTS is under construction in 27 दो नई cities. प्रतियोगिकियां अर्थात मेट्रो Two लाइट new और technologies, मेट्रोनिया that is Metro मेट्रोनिया Light समान and अनुभव Metro सुविधा Neo, के साथ will be अपेक्षाकृत कम deployed लागत पर to provide मेट्रो रेल metro तंत्र rail प्रदान करने के systems लिए at तथा much टीयर lesser 2 cost शहरों में सुरक्षा with same तथा टीयर 1 experience, शहरों के परिधि convenience क्षेत्रों में and तैनात की safety जाएगी। in Tier 2 cities and peripheral areas of Tier 1 cities also. केंद्रीय हिस्से की धनराशि निम्नलिखित को दी Central जाएगी। counterpart funding will कोची be मेट्रो provided रेलवे to फेज 2 कोची जिसकी लंबाई मेट्रो 11.5 रेलवे किलोमीटर फेज 2 और of लागत 11.5 kilometer at a cost of 1,957.05 करोड़ रुपए होगी। चेन्नई 1,957.05 मेट्रो crores. रेलवे फेज 2 जिसकी लंबाई Chennai Metro Railway Phase 118.9 2 किलोमीटर of और लागत 118.9 kilometers at a cost of 43 करोड़ रुपए होगी। 63,246 बेंगलुरु crores. मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट फेज 2A बेंगलुरु और मेट्रो 2B रेलवे जिसकी लंबाई प्रोजेक्ट फेज 58.19 किलोमीटर और लागत 14,788 करोड़ रुपए होगी। 14,788 नागपुर मेट्रो crores. रेल परियोजना फेज 2 और नासिक नागपुर मेट्रो मेट्रो रेल जिसकी प्रोजेक्ट लागत फेज क्रमशः 2 and Nashik Metro 5,977 at a करोड़ cost रुपए of और 2,092 करोड़ 5,976 रुपए crores होगी। and 2,092 crores विद्युत respectively. अवसंरचना Power infrastructure. पिछले 6 वर्षों में विद्युत क्षेत्रों में कई सुधार और उपलब्धियां देखने में आई हैं। हमने स्थापित क्षमता में 139 गीगावाट का इजाफा किया है और 2.8 करोड़ अतिरिक्त घरों में कनेक्शन दिए हैं और 1.41 लाख सर्किट किलोमीटर की अतिरिक्त ट्रांसमिशन लाइंस बढ़ाई हैं। देश भर में संवितरण कंपनियों का अपना एक अधिकार रहा है, चाहे वह सरकारी कंपनी हो या निजी कंपनी। अब हमें प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने की जरूरत है जिससे कि उपभोक्ताओं को विकल्प मिल सके। एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा जिससे उपभोक्ता एक से अधिक संवितरण कंपनियों में से अपना चुनाव करने का विकल्प रख सकेंगे। मैं इसको पुनः पढ़ना चाहती हूँ। एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा जिससे उपभोक्ता एक से अधिक संवितरण कंपनियों में से अपना चुनाव करने का विकल्प रख सकेंगे। इन संवितरण कंपनियों की व्यवहार्यता के प्रति बहुत बड़ी चिंता है। आने वाले 5 वर्षों में 3,05,984 करोड़ रुपए के परिव्यय से एक परिष्कृत एवं सुधार आधारित तथा परिणाम संबंध विद्युत वितरण योजना 5 वर्ष में शुरू की जाएगी। इस योजना से डिस्कॉम्स को बुनियादी संरचनाओं को तैयार करने में सहायता मिल सकेगी जिसमें प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम्स का उन्नयन आदि आते हैं जो कि वित्तीय सुधार से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने नवंबर 2020 में तीसरे री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में बोलते समय एक वृहद राष्ट्रीय हाइड्रोजन एनर्जी मिशन को तैयार करने की योजना की घोषणा की थी। अब 2021-22 में एक हाइड्रोजन एनर्जी मिशन शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है जिसके तहत ग्रीन पावर स्रोतों से हाइड्रोजन को पैदा किया जा सकेगा। पोत नौवहन जलमार्ग बड़े बड़े पत्तन जो कि अपने संचालन सेवाओं को खुद देखते हैं अब एक ऐसे मॉडल के रूप में सामने आएंगे जिसका प्रबंधन इसके निजी भागीदार द्वारा किया जाता होगा। इस उद्देश्य के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में सरकारी व निजी भागीदारी पीपी के तहत प्रमुख पत्रों के द्वारा 7 परियोजनाएं प्रस्तावित की जाएंगी जिनके तहत
21-22 में, और इसके तहत 2000 करोड़ रुपए से अधिक होगी। भारत में मर्चेंट शिप को बढ़ावा देने की एक योजना शुरू की जाएगी, जिसमें मंत्रालयों और CPSI के द्वारा जारी किए जाने वाले विश्व स्तरीय निविदाओं में भारतीय शिपिंग कंपनियों की सब्सिडी के माध्यम से सहायता दी जा सकेगी। इसके लिए आने वाले 5 वर्षों में 1624 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रकार के प्रयास से ग्लोबल शिपिंग में भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी के बढ़ने के अलावा इंडियन सीफेयररों के लिए प्रशिक्षण और रोजगार के बेहतर अवसर सुलभ हो सकेंगे। भारत ने एक रिसाइकलिंग ऑफ शिप एक्ट 2019 अधिनियमित किया है और हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन तक अपनी पहुंच कायम की है। गुजरात के अलंग में स्थित लगभग 90 सी रिसाइकलिंग यार्ड्स को पहले ही HKC अनुपालन सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया है। यूरोप और जापान से और अधिक जहाजों को भारत में लाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। रिसाइकलिंग कैपेसिटी, जो कि लगभग 4.5 मिलियन लाइट डिस्प्लेसमेंट टन LDT है, को 2024 तक 2 गुना कर दिया जाएगा। इसके लिए हमारे युवाओं के लिए 1.5 लाख अधिक नौकरियों के पैदा होने का अनुमान है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। हमारी सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन की अवधि में भी देश भर में ईंधन की आपूर्ति बनाए रखी है। लोगों के जीवन में इस क्षेत्र के अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति को देखते हुए निम्नलिखित प्रमुख कदमों की घोषणा की जा रही है। पहला, उज्ज्वला स्कीम, जिसका लाभ 8 करोड़ परिवारों को हुआ है, का इस हद तक विस्तार किया जाएगा कि इसमें 1 करोड़ और लाभार्थी शामिल किए जा सकें। हम अगले 3 वर्षों में 100 और अधिक जिलों को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ देंगे। जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में एक गैस पाइपलाइन परियोजना शुरू की जाएगी। एक स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर का गठन किया जाएगा, जिससे बिना किसी भेदभाव के खुली पहुंच के आधार पर सभी प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों की कॉमन कैरियर कैपेसिटी की बुकिंग में सुविधा प्रदान की जा सकेगी और समन्वय स्थापित किया जा सकेगा। वित्तीय पूंजी। हम सेबी एक्ट 1992, डिपोजिटरी एक्ट 1996, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2007 के प्रावधानों को समेकित करके एक युक्ति संगत एकल सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड तैयार कर सके, ऐसा मेरा प्रस्ताव है। सरकार GIFT IFSC में एक विश्व स्तरीय या फिनटेक हब विकसित करने के लिए अपना समर्थन देने को तैयार है। इस दबाव के वक्त में कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में भागीदारों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए और सामान्यतः सेकेंडरी मार्केट लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए एक अस्थायी संस्थागत फ्रेमवर्क तैयार किए जाने का प्रस्ताव है। इस प्रस्तावित निकाय के द्वारा दबाव युक्त और सामान्य समय अर्थात दोनों ही स्थितियों में निवेश परक ग्रेड की ऋण सिक्योरिटीज की खरीद की जा सकेगी और इससे बॉन्ड मार्केट के विकास में मदद मिलेगी। इस उद्देश्य के लिए 2018-19 के बजट में सरकार ने देश में सोने के विनिमय को विनियमित करने के लिए एक व्यवस्था स्थापित करने की अपनी मंशा की घोषणा की थी। मैं प्रस्ताव करती हूँ कि जो जितने वित्तीय गैर परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र को और अधिक बढ़ावा देने के लिए मेरा प्रस्ताव भारतीय सौर ऊर्जा निगम में 1000 करोड़ रुपए और भारतीय नवीकरणीय विकास एजेंसी में 1500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी को लगाने का है।
मैं बीमा क्षेत्र में FDI को बढ़ावा देने के लिए मेरा प्रस्ताव बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन किए जाने का है, जिससे इसके लिए बीमा कंपनियों में अनुज्ञेय FDI सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% की जा सके और सुरक्षा उपायों को अपनाते हुए विदेशी स्वामित्व और नियंत्रण को स्वीकृति दी जा सके। इस नई संरचना के अंतर्गत बोर्ड के ज्यादातर निवेशक और प्रबंधन से जुड़े प्रमुख व्यक्ति रेजिडेंट इंडियन होंगे, जिनमें कम से कम 50% निदेशक स्वतंत्र निदेशक होंगे और लाभ का एक विशेष प्रतिशत सामान्य रूप से आरक्षित रखा जाएगा। एक नई संरचना को स्थापित करके तनावग्रस्त परिसंपत्ति का समाधान। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अपने संकटग्रस्त परिसंपत्ति के लिए उच्च स्तर का प्रावधान कर सके, इसके लिए ऐसे उपाय की जरूरत है जिससे बैंक के बही खाते ठीक हो सके। एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और एसेट मैनेजमेंट कंपनी का गठन किया जाएगा, जिससे वर्तमान के तनावग्रस्त ऋण को समेकित किया जा सके और उसे अपने हाथों में लिया जा सके। फिर उसके बाद उस परिसंपत्ति का वैकल्पिक निवेश कोष में निपटान किया जा सके और अन्य सक्षम निवेशकों को दिया जा सके ताकि उसका अंतिम मूल्य प्राप्त हो सके। PSB का पुनर्पूंजीकरण। PSB की वित्तीय क्षमता को और अधिक समेकित करने के लिए वर्ष 2021-22 में 20,000 करोड़ रुपए और का पुनः पूंजीकरण किए जाने का प्रस्ताव है। जमा बीमा। पिछले वर्ष सरकार ने बैंक ग्राहकों के लिए डिपॉजिट बीमा कवर को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दिए जाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी थी। हम इसी सत्र में DICGC एक्ट 1961 में संशोधन करने का प्रस्ताव लाएंगे, जिससे कि इसके प्रावधानों को स्ट्रीमलाइन किया जा सके, ताकि यदि कोई बैंक अस्थायी रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असफल हो जाता है, तो ऐसे बैंक में जमा करने वाले व्यक्ति आसानी से समय पूर्वक अपनी जमा राशि को इस सीमा तक प्राप्त कर सकें जिस सीमा तक वह बीमा कवरेज के अंतर्गत आती हो। इससे बैंक के उन जमाकर्ताओं को मदद मिल सकेगी जो कि इस समय तनावग्रस्त हैं। छोटे मोटे कर्जदारों के हितों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ क्रेडिट की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए NBFC के लिए, जिसकी न्यूनतम परिसंपत्ति 100 करोड़ रुपए तक की हो सकती है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन और फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अंतर्गत ऋण वसूली के लिए पात्र न्यूनतम ऋण की सीमा को 50 लाख रुपए के वर्तमान स्तर से कम करके 20 लाख रुपए तक करने का प्रस्ताव किया जा रहा है। कंपनी मामले। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रक्रियागत और तकनीकी रूप से समन किए जाने वाले अपराधों को समाप्त किए जाने का काम अब पूरा हो गया है। अब हमारा प्रस्ताव लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 को अपराध मुक्त बनाने के लिए अगला कदम उठाए जाने का है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत लघु कंपनियों की परिभाषा में संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसके तहत प्रदत्त पूंजी के लिए उसकी न्यूनतम सीमा थ्रेशोल्ड 50 लाख रुपए से अनधिक के स्थान पर 2 करोड़ रुपए से अनधिक तथा कारोबार की न्यूनतम सीमा को 2 करोड़ रुपए से अनधिक के स्थान पर 20 करोड़ रुपए से अनधिक किया जाए। इससे 2 लाख से अधिक कंपनियों को अपने अनुपालन संबंधी जरूरतों को पूरा करने में आसानी होगी। एक अन्य उपाय जिससे स्टार्टअप और अभिनवकर्ताओं को लाभ पहुंचेगा के रूप में मेरा प्रस्ताव यह है कि OPC को मंजूरी देते हुए एकल व्यक्ति कंपनी के निगमन को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे कि प्रदत्त पूंजी और कारोबार पर बिना प्रतिबंध के वे अपना विकास कर सकें और उनको किसी भी समय अपना किसी भी अन्य प्रकार की कंपनी के रूप में बदलने की अनुमति दी जाए। OPC के गठन के लिए भारतीय नागरिक के रूप में उनके आवासन की
की सीमा को 182 दिन की रखी गई है उसे 120 दिन की जाए और अनिवासी भारतीयों NRI को भारत में अपनी OPC स्थापित करने की अनुमति दी जाए। विवादों का तेजी से समाधान सुनिश्चित करने के लिए NCLT फ्रेमवर्क को मजबूत बनाया जाएगा, ई-कोर्ट सिस्टम को लागू किया जाएगा और MSME के लिए ऋण समाधान की वैकल्पिक व्यवस्था और विशेष फ्रेमवर्क को लागू किया जाएगा। आने वाले राजकोषीय वर्ष 2021-22 के दौरान हम डाटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, चालित MCA 21 वर्जन 3.0 शुरू कर रहे होंगे। इस वर्जन 3.0 में ई-स्क्रूटनी, ई-एडजुडिकेशन, ई-कंसल्टेशन और अनुपालन प्रबंधन के अतिरिक्त मॉड्यूल्स होंगे। E-adjudication, e-consultation and compliance management. विनिवेश और रणनीतिक विक्रय। कोविड-19 के बावजूद हम रणनीतिक विनिवेश की दिशा में कार्य कर रहे हैं। BPCL, एयर इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IDBI बैंक, BEML, पवन हंस, नीलाचल इस्पात लिमिटेड के साथ होने वाले कई लेन देन 2021-22 में पूरे हो जाएंगे। वर्ष 2021-22 में हम IDBI बैंक के अलावा 2 सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी का भी निजीकरण करने का प्रस्ताव रखते हैं। इसके लिए वैधानिक संशोधनों की जरूरत पड़ेगी और इसी सत्र में ही हम इन संशोधनों को लाने का हमारा विचार है। 2021-22 में हम LIC का IPO भी लाएंगे, जिसके लिए मैं इसी सत्र में अपेक्षित संशोधन ला रही हूँ। आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत हमने घोषणा की थी कि हम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रणनीतिक निवेश की एक नीति लाने वाले हैं। सदन को सूचित करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि सरकार ने उक्त नीति को अनुमोदित कर दिया है। इस नीति में सभी गैर सामरिक और सामरिक क्षेत्रों में विनिवेश का एक सुस्पष्ट मार्गदर्शन दिया गया है। हमने अपने पास ऐसे 4 क्षेत्रों को ही रखा है जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसमें न्यूनतम CPSE को बनाए रखा जाएगा और बाकी का निजीकरण कर दिया जाएगा। बाकी क्षेत्रों में सभी CPSI का निजीकरण किया जाएगा। इस नीति की मुख्य बातें अनुबंध 3 में उल्लिखित कर दी गई हैं। विनिवेश की नीति में तेजी लाने के लिए मेरा NITI से कहना है कि यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की उन कंपनियों को अगली सूची तैयार करे जिसमें रणनीतिक रूप से विनिवेश किया जाना है। इसी तरह राज्यों को भी अपने निजी क्षेत्र की कंपनियों में विनिवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हम राज्यों के लिए केंद्रीय कोष से एक प्रोत्साहन परक पैकेज लाने वाले हैं। बेकार पड़ी संपत्तियों का आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में कोई योगदान नहीं होने वाला है। ये नॉन कोर परिसंपत्तियों में ज्यादातर वे अतिरिक्त भूमि आती हैं जो कि सरकार के मंत्रालयों, विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पास पड़ी हैं। इन जमीनों का मुद्रीकरण या तो सीधे उनकी बिक्री करके या रियायत देकर या इसी प्रकार के अन्य साधनों से किया जा सकता है। इसके लिए विशेष योग्यता की जरूरत है और इस उद्देश्य के लिए मेरा प्रस्ताव है कि किसी ऐसी कंपनी के रूप में विशेष प्रयोजनीय साधन का प्रयोग किया जाए जो कि इस कार्य को पूरा कर सकें। बीमार पड़ी या घाटे में चलने वाली CPSE को समय से बंद करने के लिए हम एक ऐसे संशोधित तंत्र को लागू करने वाले हैं जिससे इन इकाइयों को बंद किया जा सकेगा। हमने विनिवेश में 2021-22 में 1,75,000 करोड़ रुपए की प्राप्तियों का अनुमान लगाया है।
सरकारी वित्तीय सुधार, government financial reform, ट्रेजरी सिंगल अकाउंट सिस्टम Under the के Treasury Single अंतर्गत Account, स्वायत्त शासी the निकाय TSA अपने system, वास्तविक खर्च के समय autonomous bodies सरकार के खाते से directly अपना draw फंड सीधे funds from निकाल the सकते government's हैं। account इससे at ब्याज the के time रूप of में आने वाली actual बचत expenditure, लागत बच saving जाती है। interest costs. हम We 2021-22 will से इस extend the TSA TSA सिस्टम system को for सर्वसुलभ universal रूप से application लागू करने वाले from हैं। 21-22. 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के On the आधार पर recommendation of the 15th हमने Finance केंद्रीय Commission, प्रायोजित योजनाओं को युक्ति संगत we have बनाने undertaken a और इनकी detailed संख्या को कम exercise करने का to विस्तृत कार्य rationalize and किया है। bring down इससे the number of इनके परिव्यय को sponsored समेकित schemes. किया जा सकेगा will और enable बेहतर परिणाम सामने आएंगे। Consolidation of outlays for better impact. सरकार बहुराज्य सहकारी समितियों government के is विकास के committed प्रति प्रतिबद्ध to है the development और of उनको हर multi-state तरह की सहायता cooperatives देगी। and सहकारी will provide समितियों all के लिए support ईज to ऑफ them. डूइंग बिजनेस को To further और अधिक streamline सरल the बनाने ease के of लिए doing मेरा business प्रस्ताव for उनके लिए एक अलग cooperatives, से I प्रशासनिक propose संरचना to set स्थापित up a करने का separate है। administrative structure for them. So the third pillar आकांक्षी of भारत Atmanirbhar का Bharat, समग्र विकास। inclusive development for माननीय अध्यक्ष aspirational महोदय, India. इस स्तंभ के Honorable नीचे Speaker, हम sir, कृषि और under इससे this संबंधित pillar, क्षेत्रों, I will cover कृषक कल्याण agriculture and और allied ग्रामीण भारत, sectors, प्रवासी farmers' श्रमिकों welfare और मजदूरों and और rural वित्तीय India, समावेशन को migrant कवर workers करने and वाले हैं। labor and कृषि। financial inclusion. सरकार किसानों को Agriculture. कल्याण के प्रति Our government is कटिबद्ध committed है। to the welfare of MSP farmers. की व्यवस्था The में MSP मूलभूत परिवर्तन regime किया गया has है जिससे undergone यह a सुनिश्चित हो change सके to कि सभी assure प्रकार price की that is जिनसों at के least मामले में 1.5 उत्पादन लागत times का the cost of 1.5 गुना production कीमत मिल सके। across all commodities. खरीद का कार्य भी अब तेजी से जारी है। इसके परिणाम स्वरूप किसानों को पर्याप्त भुगतान किए जाने के मामले में बढ़ोतरी हुई है। Resulted in increase in payment to farmers substantially. गेहूं के मामले में 2013-14 में किसानों को कुल 33,874 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आंकड़े मैंने दी है वो सभी माननीय सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण है। गेहूं के मामले में 2013-14 में किसानों को कुल 33,874 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। 2019-20 में यह राशि 62,802 करोड़ रुपए थी और 2020-21 में स्थिति और भी अच्छी हुई तथा किसानों को कुल 75,060 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और महत्वपूर्ण बात, गेहूं उत्पादन करने वाले उन किसानों की संख्या जिनको इनका लाभ मिला है 19-20 में वो 43.36 लाख तक पहुंच गई है, जो 1920 में 35.57 लाख थी। जहां तक धान की बात है तो 2013-14 में 63,928 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। 2019-20 में यह राशि बढ़कर 1,41,930 करोड़ रुपए हो गई थी। यहाँ तक कि 2020-21 में स्थिति और भी बेहतर हुई और इस अवधि में यह 2020-21 में यह स्थिति और भी बेहतर हुई और इस अवधि में
because the ये procurement खरीद is जारी है, इसलिए ongoing, मैं अंतिम and आंकड़े therefore नहीं I दे can't give you सकती the final हूँ। figure. इस अवधि में This is यह further राशि बढ़कर estimated to increase to 1,72,752 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है। 1,72,752 crores. इसका लाभ प्राप्त करने वाले The number किसानों of farmers की संख्या benefited जो increased 2019-20 में 1.24 करोड़ थी, वह बढ़कर 2020-21 में 1.54 करोड़ हो गई है। In 2020-21. इसी In the तरह same way, दालों के मामले में